time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. I've been on the ground until I finally found something that would turn it all around. Funny how it all looks so differently since I know that I'm on my way. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there. We can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there. We can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. I've been on the ground until I finally found something that would turn it all around. Funny how it all looks so differently since I know that I'm on my way. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow.
of a symphony that plays out loud. There's a world out there, we can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine forever. We want to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine forever. We want to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Something lost and found. Can you अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। और आज की हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। आप मुझे चैट पे कंफर्म कर सकते हैं। आप चैट पे आपका मैसेज मुझे आएगा। ऑल राइट जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर कंफर्मेशन। और जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं वो काइंडली इस वक्त हैंड रेज बिल्कुल ना करें। हैंड रेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप एंड पे पूछ सकते हैं इस मीटिंग के। तो अभी हैंड रेज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपके हैंड डाउन कर रहा हूँ सबके, जिन लोगों ने रेज किए हुए थे। तो अभी आप बार बार अगर हैंड रेज करेंगे तो हमें बैक एंड पे और बाकी लोगों को शायद डिस्टर्बेंस हो रही होगी। सो प्लीज़ डोंट रेज हैंड राइट नाउ। आप हैंड रेज एंड पे कीजिएगा जब क्वेश्चन आंसर का आपको कहा जाएगा। सो आज की ट्रेनिंग हम लोग शुरू करेंगे। मेरा नाम है सैयद असलम अली, सीनियर एएसएम ओरिफ्लेम, और लाहौर में मैं बेस्ड हूँ। इसके साथ मेरे साथ इस ट्रेनिंग में जो दूसरे होस्ट हैं आपके, उनका नाम है उमैर जमील, और वो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। और आज का ये सेशन जो है ये हम दोनों आप लोगों के साथ कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं ये S2S जो हमारा ट्रेनिंग प्लान है जो पिछले महीने से हमने स्टार्ट किया है उसका पार्ट है। और उस सिलसिले की ये इस मंथ की ट्रेनिंग है जिसका टाइटल है प्लान योर इनकम। तो पिछले मंथ में हमने कवर किया कि किस तरीके से बेसिकली आपने स्टार्ट करना है, आपने अपने फर्स्ट ऑर्डर्स किस तरीके से लेने हैं, आपने कैसे ज्वाइन करना है ओरिफ्लेम को। और उसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि अब अगर आपने ज्वाइन कर लिया, एक बेसिक्स का आपको पता चल गया, आपने अपना फर्स्ट ऑर्डर गैदर करना, कैटलॉग को शेयर करना, वो चीज़ें सीख ली, तो उसके बाद आपने किस तरीके से ये इंश्योर करना है कि आप अपनी इनकम को एक सस्टेनेबल तरीके से आप आगे ओरिफ्लेम के साथ एज अ बिजनेस कैरी कर सकें, और किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग पहले आपको ज़रूरी है, और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद ही ऑब्वियसली आप उस चीज़ को प्लान कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट इसका हमारा इस तरीके से होगा कि इसके दो पार्ट होंगे इस ट्रेनिंग के। पहला पार्ट जो है उसके अंदर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे ब्रीफली, जो ऑलरेडी जो ब्रांड पार्टनर्स हैं उनको कुछ हद तक अंदाज़ा भी है
लेकिन ऐसे लोग जो रिलेटिवली नए हैं, या बहुत सारे ऐसे हमारे एक अरसे से ब्रांड पार्टनर्स भी होते हैं, लेकिन वो उनको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि कमीशन स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। तो उसकी हम कमीशन की बेसिक जो कैलकुलेशन है वो कैसे होती है वो आपको बताएंगे, और उसके बाद हम ये कवर कर रहे होंगे कि अब आपने अगर ओरिफ्लेम के जो सारे मेथड्स ऑफ अर्निंग है उनको आपने उनसे फ़ायदा उठाना है, उनको आपने अचीव करने हैं सर्टन टारगेट्स अपने, उसकी बेसिस पे आपने अपनी अर्निंग इंश्योर करनी है, तो आपने प्लान कैसे करना है, आपने कैसे उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है आगे चल के, ताकि आप ओरिफ्लेम के सिस्टम के अंदर अपनी ग्रोथ को और अपनी इनकम को इंश्योर कर सकें। तो ओरिफ्लेम के अंदर आपको पता है कि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रहे होते हैं, और उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होती हैं कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग और अपनी मेहनत के साथ। जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होती हैं उसके अंदर आप अर्न कर सकते हैं ओरिफ्लेम के साथ, अपनी मंथली इनकम, अपनी एनुअल इनकम को प्लान कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अर्निंग के साथ साथ हमारे साथ जो पूरी दुनिया के जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं इंटरनेशनल, उन पे ट्रैवल कर सकते हैं। जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं उनको अटेंड कर सकते हैं। और आपको लोगों को पता होगा कि आज एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक, तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप है वो दुबई जा रहा है कमिंग वीक में ही। और बहुत सारे लोग ऐसे जो जिन्होंने पिछले साल के अंदर डायरेक्टर सेमिनार को क्वालिफाई किया, क्राइटेरिया अपना फुलफिल किया, वो हमारे साथ दुबई ट्रैवल कर रहे हैं इस 19 से 22 जुलाई। और इसी तरीके से हमारी एनुअली बहुत सारी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं वो आपको मिल रही होती हैं, जो आप अपने लेवल के हिसाब से उनको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ग्रोथ की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी ओरिफ्लेम आपको देता है कि कहीं पे आपको ये नहीं लगता कि जी अच्छा जी अब ये मेरा एंड है ग्रोथ का और इससे ऊपर मैंने ग्रो नहीं कर सकता, इससे ऊपर मैं अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकती, या इसके ज़्यादा मैं अपनी टीम नहीं बिल्ड कर सकती। ऐसी कोई लिमिट ओरिफ्लेम के सिस्टम के अंदर नहीं है। आप जितना चाहें आप उतना ही ग्रो कर सकते हैं, जितना बड़ा नेटवर्क चाहें उतना बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओरिफ्लेम इंश्योर करता है कि आप लोगों की हर अचीवमेंट को हम एक ड्यू प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको रिकग्नाइज करें। हमारी मीटिंग्स के अंदर, हमारे इवेंट्स में, हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर लोग जो जिन्होंने अचीवमेंट्स की होती हैं उनको रिकग्नाइज किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, और उनको मेक श्योर किया जाता है कि वो अपनी उस अचीवमेंट को इंजॉय कर सकें, उस अचीवमेंट के ऊपर वो प्राउड फील कर सकें, और अपना नेक्स्ट टारगेट्स को भी वो प्लान कर सकें। जैसा मैंने आपको कहा कि हैंड रेज बिल्कुल ना करें। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि अगर किसी ने फर्दर हैंड रेज किए तो उसको हम मीटिंग से किक ऑफ कर देंगे, दोबारा आप ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। हैंड रेज आपने तब करना है जब आपको कहा जाएगा फॉर क्वेश्चंस। तो हम चलेंगे कि सबसे पहले जो हम आपकी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है वो आज का हमारा प्लान है, और उसके ऊपर हम अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर करेंगे। ऐसे लोग जो नए हैं जिन्होंने अभी उस अंडरस्टैंडिंग को, ये सक्सेस प्लान को उस डिटेल के अंदर स्टडी नहीं किया, उनके लिए ये मेंशन करना यहाँ पे ये जरूरी है कि ओरिफ्लेम के अंदर हार्डकोर कैश यानी पैसे कमाने के जो आपके पास तरीके हैं वो 4 एरियाज हैं मेन, जिनके थ्रू आप ओरिफ्लेम के सिस्टम में, ओरिफ्लेम के बिजनेस से पैसे आप कमा सकते हैं। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि इमीडिएट प्रॉफिट। आप जैसे ही कोई प्रोडक्ट ओरिफ्लेम की रिकमेंड करते हैं किसी को और उसको सेल करते हैं वो प्रोडक्ट, तो आपको इमीडिएट प्रॉफिट उसमें से एक सर्टेन अमाउंट आपको मिल रही होती है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें जब आप अपने साथ अपनी टीम बिल्ड करते हैं और उस टीम बिल्ड करने के ऊपर आपके साथ साथ आपकी टीम भी काम कर रही होती है, वो भी सर्टेन सेल्स और सर्टेन अर्निंग्स अपनी भी इंश्योर कर रही होती है, तो उसके साथ साथ आपको भी अपनी पूरी सेल्स फोर्स के जो ग्रुप का परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिल रहा होता है। और उसके बाद जब आप एक सर्टेन लेवल से आगे ग्रो करते हैं, जब आपके नीचे स्प्लिट आउट्स आते हैं, आप खुद सीनियर मैनेजर बनते हैं और आपके नीचे फर्दर सीनियर मैनेजर के लोग डेवलप होना शुरू होते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट के साथ साथ उन सीनियर मैनेजर के स्प्लिट आउट्स के अंदर से बोनसेस भी मिल रहे होते हैं, जिसमें डायरेक्टर बोनस है, आपका गोल्ड बोनस है, और इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट बोनसेस अवेलेबल हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप कोई भी लेवल अचीव करते हैं डायरेक्टर एंड अबव, तो आपको कंपनी एक लंप सम कैश अवार्ड अमाउंट हर टाइटल के ऊपर दे रही होती है जब आप उसको फर्स्ट टाइम अचीव करते हैं। सो उसको कैश अवार्ड कहते हैं। आगे जाके हम इन चारों सेगमेंट्स को
वन बाय वन देखेंगे कि इसका क्या मतलब है और किस तरीके से आपने इनमें से पैसे कमाने हैं और कैसे अपने पैसों को प्लान करना है। सो आप अटेंटिव रहिएगा। ये 4 चीजें आपकी अंडरस्टैंड करना ओरिफ्लेम के पूरे अर्निंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के बराबर है। सो सबसे पहली जो चीज है इसके अंदर वो है इमीडिएट प्रॉफिट। सो हम देखते हैं इमीडिएट प्रॉफिट आप कैसे कमाते हैं। इमीडिएट प्रॉफिट में ये है कि जो भी ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट आप रिकमेंड करते हैं, किसी भी कस्टमर को आप सेल करते हैं, तो उसके ऊपर आपको कंपनी इमीडिएटली 20% डिस्काउंट या इमीडिएट प्रॉफिट दे रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर 1000 रुपए की प्रोडक्ट है जिसकी कैटलॉग प्राइस 1000 रुपए है और आप कस्टमर को वो सेल करते हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से वो प्रोडक्ट 800 रुपए की मिल रही होगी। सो 200 रुपए उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट जो कि 20% बनता है मिल रहा होगा। और जितनी भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे, जैसे कि आपको अभी आगे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जा रहा है कि इस स्लाइड पे अगर आप देखें तो एक क्रीम है कोलेजन की, और इस क्रीम को अगर आप सेल करते हैं तो इसकी क्रीम की प्राइस है फॉर एग्जांपल 3850 रुपए, और आपको ये क्रीम मिलेगी 3080 रुपए के अंदर। और जो डिफरेंस होगा इन दोनों प्राइसेस का जो कि 770 रुपए है, वो आपका इमीडिएट प्रॉफिट होगा। आप कस्टमर को 3850 की बेच रहे होंगे और कंपनी से 3080 रुपए की ले रहे होंगे। इसी तरीके से जब आप एक क्रीम की बजाय एक स्किन केयर का सेट सेल आउट करते हैं, तो उसकी प्राइस सेट की 12,900 रुपए है। उस प्राइस के ऊपर आपको जो मिलेगा कीमत जो कंपनी को पे करना पड़ेगी वो होगी 10,320 रुपए, और आपको 2580 रुपए इमीडिएट प्रॉफिट के तौर पे मिल रहे होते हैं। तो आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो चीज आपको अप फ्रंट ही यानी ऑर्डर के साथ ही आपको कंपनी जो डिफरेंस दे रही है आपको प्राइस में, वो आपका इमीडिएट प्रॉफिट कहलाता है। और आपने कस्टमर को अपनी चीज कैटलॉग प्राइस के मुताबिक बेचना होती है, और आपने जो कस्टमर प्राइस और ब्रांड पार्टनर प्राइस का डिफरेंस है वो आपने एज अ प्रॉफिट अपने पास रखना होता है, जिसको हम इमीडिएट प्रॉफिट कहते हैं। तो जितने ज्यादा आप सेट सेल करते जाएंगे, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आप सेल करते जाएंगे, कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सेट पे 2500 रुपए के करीब प्रॉफिट आ रहा था, तो आप 4 सेट सेल करेंगे तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट, 10,320 रुपए का प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा उस सेल के अंदर से। सो आपने खुद से प्लान करना है कि आपने क्या चीज कितनी सेल करनी है। ये ना सिर्फ आपको ये वाला इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो आप हमारे सिस्टम को आप समझते हैं कि जब आप सेल करते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट सर्टन बीपीस मिल रहे होते हैं, और उन बीपीस से रिलेटेड फर्दर आपकी अर्निंग हो रही होती है, जो भी हम नेक्स्ट स्टेप पे जानेंगे। तो आपको आई होप इमीडिएट प्रॉफिट का पता चल गया होगा कि इमीडिएट प्रॉफिट क्या है, और इमीडिएट प्रॉफिट के मद में अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो वो ऐसे बढ़ेगी कि आप अपनी सेलिंग मैक्सिमम कर लेंगे तो आपकी इमीडिएट प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। दूसरा स्टेप है हमारी अर्निंग का, या दूसरा सेगमेंट है जहां से आप पैसे कमाते हैं, और इनफैक्ट आप इसी लेवल से ही आप समझें कि ओरिफ्लेम के अंदर आप पैसे कमाना शुरू होते हैं, क्योंकि जो इमीडिएट प्रॉफिट है उसकी अमाउंट आप बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। अपनी इनकम को सिर्फ इमीडिएट प्रॉफिट से आप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, वहां से आपकी इनकम लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि आप जब अकेले सेल कर रहे हैं तो अकेले सेल करने की हर बंदे की अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी, वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सेल कर रहा होगा वो चीजें, तो उसके अंदर उसके पास एक सीलिंग आ जाएगी कि वहां से ज्यादा उसके लिए सेल करना मुश्किल हो जाएगा। उससे आगे जब आपने अपने इनकम को बढ़ाना होता है तो वो होता है थ्रू टीम। तो और जब आप अपने साथ टीम बिल्ड करते हैं, आप रिक्रूट करते हैं लोगों को, तो उसके अंदर जो आपको इनकम मिल रही होती है उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट। और वो परफॉर्मेंस डिस्काउंट किस तरीके से मिलता है, ये टेबल एक है जो आप लोगों के पास ऑलरेडी भी होना चाहिए, ये हमारे सक्सेस प्लान के अंदर ये प्रिंटेड है। और इस टेबल से आपको ये पता चलता है कि जैसे ही आपके ग्रुप पॉइंट्स एक सर्टेन लेवल अचीव करते हैं तो आपका कमीशन लेवल बनना शुरू हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके बिजनेस पॉइंट्स जो हैं, जो बोनस पॉइंट्स हैं, हर प्रोडक्ट के साथ आपको अगर आप देखें तो कैटलॉग के ऊपर लिखा होता है, आपके ऑर्डर्स के अंदर भी लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट 10 बीपीस की है, ये 20 बीपीस की है, ये 15 बीपीस की है। तो जैसे जैसे आपके बिजनेस पॉइंट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका डिस्काउंट लेवल बढ़ता है। जब आप इंडिविजुअल सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके 0 से 199 के दरमियान अगर बीपीस हैं, तो आपका कमीशन लेवल होगा 0%, यानी आपको मंथ एंड पे उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मिल रहा होगा। इतने पॉइंट्स के ऊपर आपको इमीडिएट प्रॉफिट ही सिर्फ आप अर्न कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आप 200 पॉइंट पे पहुंचेंगे
तो 200 पॉइंट के ऊपर आपका लेवल सिस्टम में भी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा और हर जगह पे कि आपने 3% लेवल अचीव कर लिया है। और आप जब 200 पॉइंट और 599 पॉइंट्स के दरमियान आपका ग्रुप होगा तो आपको 3% लेवल के हिसाब से आपको कमीशन मिल रहा होता है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर इस टेबल के मूव करते हैं तो आपके 600 पॉइंट्स जब आप क्रॉस करते हैं तो आपका लेवल 6% हो जाता है। जब आप 1200 पॉइंट क्रॉस करते हैं तो 9% हो जाता है। और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जब आप 10,000 पॉइंट पे आपका ग्रुप बीपीज पूरे जो आपका ग्रुप का है पॉइंट्स वो 10,000 पे पहुंचते हैं तो आपका लेवल 21% हो जाता है और उस लेवल को हम सीनियर मैनेजर भी कहते हैं। इसके दरमियान में जो 12, 15 और 18% के लेवल है उनको हम मैनेजर कह रहे होते हैं। सो आपको 12% का कम से कम जब जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो जो आपका जो पहला टारगेट होता है वो मैनेजर बनना होता है। तो आपने कम से कम अपने ग्रुप को इस लेवल पे लेके आना होता है कि वो 2400 पॉइंट्स हैं, 2400 बीपीज हैं, वो अचीव कर सके। और वो कैसे होते हैं आगे आगे हम एक दो एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि किस तरीके से आप कौन सा लेवल अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, इसके अंदर आप एक ब्रांड पार्टनर शो हो रहे हैं और आपके नीचे फर्दर आपने 5 लोगों को रिक्रूट किया हुआ है। तो टोटल आप लोग 6 लोग हैं और आपने हर एक ने 200 बीपीज की सेल की है उस महीने। तो टोटल ग्रुप के बीपीज कितने हुए आपके 5 लोगों जो आपके नीचे हैं उनके 200 बीपीज और आपके अपने 200 बीपीज। तो 6 लोगों के 200 बीपीज मिला के कुल हुए 1200 बीपीज। तो जो आपका जो ग्रुप का कमीशन का जो लेवल है जो आपके ग्रुप बीपीज की बेस पे डिसाइड होगा वो होगा 1200 बीपीज के हिसाब से। और 1200 बीपीज के हिसाब से इस टेबल के मुताबिक आपका कमीशन लेवल बनेगा 9%। अब जब आप 9% कमीशन लेवल अचीव करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, वो कुछ ऐसे होती है कि आप अगर इस टेबल में देखें जो अभी आपको स्लाइड नजर आ रही है तो जब आपके जो ब्रांड पार्टनर आपकी टीम मेंबर्स हैं उनके अगर 200 बीपीज हैं तो आप इसका मतलब है कि वो भी 3% पे पहुंच गए, राइट। उन्होंने भी 0% से ऊपर वाले लेवल पे चले गए और आप खुद हैं 9% के ऊपर। तो आपका जो कमीशन का लेवल है, फॉर एग्जांपल आप 9 पे हैं और आपके नीचे वाला बंदा 3 पे है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका कमीशन होगा जो होगा 9% माइनस 3%, मतलब 6% आपको इस ग्रुप के अंदर से कमीशन मिल रहा होगा। टोटल कंपनी की तरफ से समझने के जब आप 9% वाला ग्रुप है तो 9% जा रहा है, 9% में से 6% आपको मिल गया और 3% आपके नीचे वालों को मिल रहा है क्योंकि वो भी 2% लेवल पे हैं। तो आपका जो 6% कमीशन होगा उसको कैलकुलेट रुपीज में कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा जब आप अगर 9% पे पहुंच गए हैं तो जो बीपीज होते हैं, एक बीपी हमारा उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 69। अप्रोक्सीमेट इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें टैक्स का इम्पैक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट से ऊपर डिफरेंट होता है। तो किसी की हो सकता है जब आप एक्चुअल कैलकुलेट करें, प्लस बीपीज राउंडेड होते हैं, पॉइंट्स में नहीं होते, 1 बीपी होता है या 2 होता है या 10 होता है, 11 होता है। सो इस वजह से आपको जो अप्रोक्सीमेटली 69 का एक बीपी कॉस्ट करेगा जब आप अपने टोटल मंथली बीपीज देखेंगे किसी मंथ के। तो आपने जब 6% कमीशन कैलकुलेट करना है अगर अपने बीपीज के और अपने लेवल की बेस पे, तो वो इस तरीके से होगा कि 200 पॉइंट्स थे आपके और 200 पॉइंट्स के ऊपर आपका 6% कमीशन था और एक बीपी था 69 रुपीज का। सो 69 रुपीज के हिसाब से जब आप ये वाली कैलकुलेशन करते हैं तो 828 रुपीज आपको हर ब्रांड पार्टनर से जो आपके नीचे हैं 3% वाले, हर एक से 828 रुपए आपको मिल रहे होंगे। और 828 रुपए का जब आप टोटल करेंगे तो इसका मतलब है 4140 रुपए आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट इस ग्रुप से जो कि आपका 9% वाला ग्रुप है, या आप खुद 9% पे हैं और आपके नीचे 3% वाले लोग हैं, उससे आपको 4000 रुपए मंथली कमीशन मिल रहा होगा इन बीपीज के ऊपर। इसी तरीके से जब आप और अपना ग्रोथ को बढ़ाते हैं और आप अगले लेवल्स अचीव करते हैं और आपका नेटवर्क की जो पिक्चर है कुछ इस तरीके से बनती है जो आपको नजर आ रही है कि आप अब फर्दर अगले लेवल पे चले गए और आपके नीचे वाले जो लोग हैं वो उन्होंने अपनी टीम्स बना ली और हर एक के नीचे 5-5 लोग आ गए। तो आपके जो इस टेबल में आपको नजर आ रहा है आपके नीचे जो 5 लोग थे उन्होंने फर्दर 5-5 लोग अपने नीचे कर लिए, तो हर ग्रुप उनका जो फर्दर ग्रुप है यानी वो 6-6 लोग हो गए
और हर एक के 1200 पॉइंट्स हो गए, और 1200 पॉइंट्स 5 टाइम्स वो हो गए, उसके ऊपर आपके 200 पॉइंट्स अपने हो गए, तो आपके ग्रुप के टोटल पॉइंट्स जो बन गए वो 6200 पॉइंट्स बन गए। और अब हमने फाइनल उसी टेबल को रेफर करना है कि अगर 6000 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स हमारे हैं तो वो कहाँ पे मेरा लेवल बन रहा है कमीशन का, तो वो लेवल बनता है 15%। सो अब आप जो कि पहले आप 9% पे थे, अब आप 15% मैनेजर इस वक्त बन चुके हैं, और जब आप 15% होंगे तो आपका कमीशन कैलकुलेशन उसी फॉर्मूले पे कुछ इस तरीके से बन रहा होगा कि एक बीपी आपका 69 रुपीज का था, और 200 बीपीज की हमने वैल्यू निकाल ली कि वो तकरीबन 13,800 रुपए के बने। और उन 13,800 रुपए की जब हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं 15% के नीचे, क्योंकि आपके अब जो नीचे लोग हैं वो भी 3% के बजाय वो 9% पे आ चुके होंगे, क्योंकि उनके अपने बीपीज भी 1200 हो चुके हैं। जब अब आपने परफॉर्मेंस डिस्काउंट अपना कैलकुलेट करना है, तो आपने अपने नीचे वाला जो बंदा है आप खुद 15 पे हैं और आपके नीचे वाले बंदे 9 पे हैं, तो आपको अगेन जो कमीशन की परसेंटेज मिलनी है वो 6% है। लेकिन क्योंकि बीवी वॉल्यूम उसकी जो है जो वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी होगी, तो आपका कमीशन बढ़ता जाएगा। जैसे आपने हर ब्रांड पार्टनर की सेल जो आपके इसमें आ रहा होगा ग्रुप की, उसकी 82,800 बनेगी, क्योंकि उसके नीचे भी 5 लोग हैं, और उन सब से जब आप 6% सेल्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल परफॉर्मेंस डिस्काउंट बन जाएगा इवेंचुअली उस टीम से जो मैंने आपको पीछे दिखाई है 15% के नीचे, वो 24,840 रुपए बनेगा। और ये ऑब्वियसली उसके अलावा होगा जो आपने अगर खुद से सेल करके जो इमीडिएट प्रॉफिट अगर आपने 5, 10, 15 हज़ार जो भी कमाया है वो आपने इमीडिएटली कमा लिया, लेकिन उसके बाद आपको 24,840 रुपए मंथ एंड पे कमीशन के तौर पे कंपनी दे रही होगी। इसके बाद अगर इसी तरीके से आप इस टेबल में इसी फॉर्मूले पे चलते जाएंगे, आप 15 से 18 हो गए, 18 से 21 हो गए, वहां तक आप ऐसे ही अपने हर ग्रुप का जो आपके नीचे लोग हैं, ये सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे आपको ये दिखाया हुआ है कि अगर आप 15% पे हैं तो आपके नीचे सारे 9% पे हैं, लेकिन एक्चुअली ये होगा कि आप 15% पे हैं, आपके नीचे हो सकता है एक बंदा 9 पे हो, एक बंदा 6 पे हो, एक बंदा 3 पे हो, तो आपको उन सब के ग्रुप्स में से उसके डिफरेंस के मुताबिक, यानी 15% वाले को 3% वाले से 15 माइनस 3 करके 12% कमीशन मिल जाएगा, 6% वाले से उसको 9% मिल जाएगा। इस तरीके से डिफरेंस की बेसिस पे कमीशन कैलकुलेट होगा, और वो तकरीबन 25,000 रुपए आप इस लेवल पे जो एक एग्जांपल है उसके मुताबिक आप कमा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा वॉल्यूम आपके नीचे है तो इससे ज्यादा भी इनकम आपकी इस लेवल के ऊपर हो सकती है। तो आपने जितना भी परफॉर्मेंस डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो, जितना भी परफॉर्मेंस डिस्काउंट आपको बढ़ाना हो अपना, वो इसी तरीके से बढ़ेगा कि आप अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। और लेवल इंक्रीज आपका किस तरीके से होगा कि आपके नीचे टीम, आपकी टीम के फर्दर नीचे टीम, उनके नीचे टीम, क्योंकि हर बंदे ने वही काम करना है जो आप खुद कर रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन किया और आप मैनेजर लेवल पे गए तो आपने अपनी टीम को भी यही टारगेट देना है कि जी आपका भी टारगेट यही है कि सबसे पहले उन्होंने मैनेजर लेवल करना है, सीनियर मैनेजर करना है, और उसी तरीके से जब अब नीचे वाले लोग ग्रो करते जाएंगे तो आपके लेवल्स ऑटोमेटिकली आप एक मैनेजमेंट लेवल पे आ जाएंगे। आपने उन लोगों को मैनेज करना होगा और आपके लेवल खुद ब खुद से अचीव होते रहेंगे। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है आप लोगों की तरफ से कि 21% के बाद क्या होता है, कि हम तो कह रहे हैं कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है सक्सेस प्लान की, तो ये 21% के बाद रुक क्यों गया? तो 21% के बाद जो कैलकुलेशन ऑफ इनकम है वो मुख्तलिफ हो जाती है, और वो उसको हम कहते हैं बोनसेस की फॉर्म में आपको मिल रहे होते हैं। जब आप 21% पे खुद पहुंच गए और उसके बाद नीचे वाले लोगों को भी ऑब्वियसली आपने फर्दर मुसलसल ग्रो करते रहना है, तो जब आपका नीचे वाला बंदा सीनियर मैनेजर पे पहुंचेगा तो वो आपसे आपकी एक लाइन, एक स्प्लिट आउट सीनियर मैनेजर आपका बन जाएगा। और उस सीनियर मैनेजर से फिर आपको, क्योंकि आपका कमीशन का लेवल तो सेम हो गया, आप भी 21 पे हैं, वो भी 21 पे है, तो अगर हम उसका 21 का डिफरेंस निकालें तो वो तो 0% कमीशन बनेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, उस की लाइन से, उस सीनियर मैनेजर की लाइन से आपको फिर जो अमाउंट मिल रही होगी वो इन द फॉर्म ऑफ बोनस होगी, और वो बोनस आपको अपने स्प्लिट आउट से 6 डिफरेंट किस्म के बोनसेस मिलते हैं जैसे 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 आपका लेवल बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल जब आपके पास एक स्प्लिट आउट है तो आप डायरेक्टर होते हैं तो आपको डायरेक्टर बोनस
मिलता है। फिर फर्दर आपके नीचे डेप्थ क्रिएट हो जाती है तो आपको गोल्ड बोनस, फिर आपको सैफायर बोनस, फिर डायमंड, डबल डायमंड और एग्जेक्टिव बोनसेस। ये इस तरीके से आपको लेवल के साथ साथ वो बोनसेस कैलकुलेट होते हैं आपकी स्प्लिट आउट से। और सिर्फ स्प्लिट आउट से नहीं बल्कि उनके नीचे भी जो डेप्थ में जितनी हो रही होती है ग्रोथ, जितनी डेवलपमेंट हो रही होती है, उससे भी आपको बेनिफिट मिल रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस। सो जैसे जैसे आप अपने स्प्लिट आउट्स और आपके नीचे डेप्थ में फर्दर बनता जाएगा आपका नेटवर्क, वो आपको बोनसेस मिलते रहेंगे। क्योंकि जो एक सीनियर मैनेजर है उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है वो सारी आपकी टाइटल्स बेस होती है कि आपका टाइटल कितने ज्यादा, आपके नीचे स्प्लिट आउट्स कितने ज्यादा हैं, उसकी बेसिस पे आपके टाइटल भी बनते हैं और आपको जो है ये आपकी बढ़ती जाती है और आप मल्टीपल बोनसेस एट अ टाइम अर्न कर सकते हैं। और आपको जैसे जैसे लेवल बढ़ता है आपको सेम टाइम पे ही डायरेक्टर बोनस भी, गोल्ड बोनस भी, सैफायर, डायमंड, डबल डायमंड, एग्जेक्टिव, ये सारे बोनसेस आपको टाइम के साथ साथ मिल रहे होते हैं। और वो बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट्स होती हैं जो कोई भी हायर एग्जीक्यूटिव आपका किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहा हो या अपना कोई बिजनेस कर रहा होता है बंदा, वो कमा सकता है। उसके बाद जब ये बोनसेस भी हो गए और ये वो सारी चीजें हो गई जो आपने खुद ग्रो करके आप कंपनी से कमा रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी आपको एक चौथी चीज ऑफर करती है, वो है कैश अवार्ड्स। और कैश अवार्ड जो है वो आपको सक्सेस प्लान के मुताबिक डायरेक्टर लेवल से ऊपर जितने भी लेवल्स आप अचीव करते जाते हैं, आपको एक वन टाइम उस लेवल का कैश अवार्ड मिल रहा होता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहली दफा जब डायरेक्टर लेवल अचीव किया तो आपको 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड कंपनी दे रही होती है। इस एनिवर्सरी ईयर के लिए वो 1 लाख की बजाय भी 1.5 लाख रुपए तक का कैश अवार्ड आप जीत सकते हैं, लेकिन जो उसकी स्टैंडर्ड अमाउंट है वो 1 लाख रुपए ही है। वो 1 साल के बाद अगले साल हो सकता है फिर वो वापस 1 लाख हो। सो कैश अवार्ड्स की अमाउंट्स जो है वो, जैसे आपका डायरेक्टर पे 1 लाख है, गोल्ड पे 2 लाख है, सीनियर गोल्ड पे 3 लाख है, सैफायर पे 4 है, डायमंड पे 6 है, इस तरीके से लाखों में वो इंक्रीज करती जाती हैं। और जो सक्सेस प्लान का टॉप है जिसको हम डायमंड प्रेसिडेंट डायरेक्टर कहते हैं, उस लेवल पे अगर आप रीच करते हैं तो आप 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ रुपए तक का कैश अवार्ड ओरिफ्लेम से जीत सकते हैं। सो कैश अवार्ड्स ये आपके लिए वन टाइम एक टाइटल अचीवमेंट की एक पूरी आपकी रिकग्निशन के साथ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ ओरिफ्लेम आपको पैसे दे रहा होता है, पैसों के साथ साथ आपको एक सर्टन लेवल्स के ऊपर अपने और सेमिनार्स के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आपको ओरिफ्लेम रिकग्नाइज भी कर रहा होता है, आपकी सेलिब्रेशंस भी कर रहा होता है अपने इवेंट्स के अंदर। सो जैसे ही आप टाइटल अचीव करते जाते हैं आपको पैसों के साथ साथ आपका लेवल भी सबको नजर आ रहा होता है कि इस लेवल पे ये बंदा पाकिस्तान के अंदर इन्होंने डायरेक्टर अचीव कर लिया, अब ये इतने गोल्ड डायरेक्टर्स हैं। और अभी हमारा जिस तरह डायरेक्टर सेमिनार दुबई में हो रहा है, वहाँ पे भी हमारे जो पिछले साल के सारे जो डायरेक्टर्स एंड अबव वाले लोग हैं जिन्होंने टाइटल्स अचीव किए हैं वही ट्रैवल कर रहे हैं। तो पैसों के साथ साथ आपको इंटरनेशनल ट्रैवल का भी मौका कंपनी दे रही होती है। अब ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं और इन सारी चीज़ों को ऑब्वियसली आप अपनी मेहनत के साथ, अपनी स्ट्रेटजी के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ अचीव कर सकते हैं। और पाकिस्तान में आप लोगों के साथ ही ऐसे हमारे पास लीडर मौजूद हैं कि जो ऑलरेडी बहुत सारी ये चीज़ें हमारे साथ अचीव कर भी चुके हैं, मिलियंस के कैश अवार्ड भी जीत चुके हैं, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की सैर भी कर चुके हैं। सो उस सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए जो नए लोग हैं, जो जिन्होंने अभी सारा कुछ, वो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए गाइडलाइंस क्या हैं, कैसे उन्होंने अपने प्लान करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से उन्होंने अचीव करना है इन सारी चीज़ों को, उसके लिए मैं ऐड करूंगा इस मीटिंग में अब उमैर जमील को जो है इस्लामाबाद में, और वो यहाँ से ऑनवर्ड आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। उमैर, आप हमारे साथ हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे सिर्फ ये कंफर्म कर दीजिए असलम साहब, क्या कैन यू सी मी, क्या मैं कैमरे पे नजर आ रहा हूँ? और सेकंडली ये कि क्या मेरी आवाज ऑडिबल है कि नहीं? दैट विल बी ग्रेट। जी उमैर, आप बिल्कुल ऑडिबल तो हैं और मैं अपनी पीपीटी स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ से आप शेयर कर लीजिए। कैमरे का भी मैं आपको कंफर्म करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हैंड रेज बहुत सारे हुए हैं और यस, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया हुआ। रिक्वेस्ट करेंगे जी सारे जरा थोड़ी देर के लिए हैंड रेज करना बंद करें।
ताकि आप हमें देख भी सकें और सेकेंडली आपको प्रेजेंटेशन में भी हो जबरदस्त। आपका कैमरा मुझे अभी हाँ, नजर नहीं आ रहा। आना शुरू होता है। हाँ जी, अब आपका कैमरा ऑन है और आपकी तस्वीर नजर आ रही है। जबरदस्त जी। मैम इकरा, हमने आपका हाथ देख लिया है और मैम दुर्रे नजब, जबरदस्त जी। अमेजिंग जी। आप अपने हैंड्स अभी नीचे कर सकते हैं, इट्स फाइन। आपके जितने क्वेश्चंस हैं वील एड्रेस देम। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि हमने जो भी डिटेल्स देखी हैं, असलम साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया कि हमारे पास ओरिफ्लेम में बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ओरिफ्लेम में हमारे पास आपके सामने इमीडिएट प्रॉफिट मौजूद है, कमीशन मौजूद है, बोनसेस हैं, कैश अवार्ड्स हैं, और ये सिर्फ वो हार्डकोर कैश के प्राइसेस हैं जिसके बारे में भी बात की असलम साहब ने। इसके अलावा देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। स्काई इज द लिमिट जी इन ओरिफ्लेम। और अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अभी हमारे पास बहुत ज्यादा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, हम काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन दैट इज ओनली पॉसिबल कि अगर आप लोग राइट डायरेक्शंस में अपनी एफर्ट्स को पुट इन करते हैं। अगर आप राइट डायरेक्शन में नहीं, अगर आप लॉस्ट होंगे तो आप कभी भी जल्दी ग्रो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम कुछ बात करेंगे कि आपने अपने गोल्स को कैसे सेट करना और आप किस तरीके से प्लान करें इस चीज को। सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगों ने अपनी मोटिवेशन को देखना है कि वो क्या है। ये सारे गोल्स, ये सारी अचीवमेंट जो कि असलम साहब ने भी आपको बताई हैं, लेट मी जस्ट गिव यू द एक्चुअल पिक्चर एज वेल। थोड़ी सी ज्यादा डिटेल आपको उसके बारे में बताऊंगा। इनकम के बारे में हमने सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए आपको दिखाई है कि एक 12% वाला या 15 या 18% वाला कितने पैसे अर्न करता है। आप में से वो लोग जो कि मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से सिर्फ एक शख्स जो कि 21% पे होता है, उसके पास एक डायरेक्ट लाइन में 3% या 6% वाला ऐड करके 5 to 8,000 का इजाफा करता है उसकी हर मंथ की इनकम में, अगर आपकी डायरेक्ट लाइन में आ रहा है और आप 21% पे हैं। तो फर्स्ट योर टारगेट शुड बी कि आप एटलीस्ट 21% ऑफ द कमीशन को आप एटलीस्ट टच कर जाएं। दैट इज समथिंग कि आप कर सकते हैं अगर आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। वो कैसे बनना और आपका अपना गोल क्या और आपकी मोटिवेशन क्या, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या चाहते हैं, आपकी टीम में आने वाला हर शख्स क्या चाहता है। नाउ दैट इज समथिंग जिसको हमने डिस्कवर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट। आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं, आपके माइंड में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो आप ज्वाइन करते हैं ना। आप कुछ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई हम ओरिफ्लेम से अर्निंग करें, ओरिफ्लेम हमारी साइड इनकम हो या ओरिफ्लेम हमारी मेन इनकम हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट बेसिकली। और आप क्या चाहते हैं, ये सब चीजें एक ख्वाब से शुरू होती हैं। हर इंसान लाइफ में बेहतरी चाहता है कि उसकी लाइफ में बेहतरी आए। हर इंसान चाहता है उसकी लाइफ में ना सिर्फ आसानी आए बल्कि वो उसके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं वो उनके लिए कुछ ऐसे काम कर सके कि वो लोग आइदर उससे प्राउड फील करें मिलके, या वो एक्चुअली उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो। दिस इज व्हाट यू ऑल वांट एज वेल। अगर मैं आज आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि आप लोग क्या चाहते हैं, आई एम श्योर, और मैंने कई दफा ये ट्राई भी किया है, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर मैं आपसे भी पूछता हूँ आप लोग क्या चाहते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे मैं अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे मैं अपने भाई बहनों के लिए करना चाह रहा हूँ। आप कहेंगे मैं अपने बच्चों के लिए करना चाह रहा हूँ। आप अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं, एंड दैट इज फाइन। हम लोग बने इस तरह हुए हैं, हमारी बिल्डिंग ही इस तरह है, यानी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह हुई है कि हम दूसरों के लिए बने हुए हैं बेसिकली। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हम चाहते क्या। फर्स्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लाइफ में डिजायर करते हैं लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये ओरिफ्लेम का जो प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, ये क्लेम करता है और इसने प्रूफ किया बेसिकली। दिस इज अ प्रूवन फैक्ट कि ओरिफ्लेम ने बहुत सारे लोगों के रियल ख्वाबों को पूरा किया है, लाइफ को चेंज किया है, अच्छी इनकम के साथ, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ, जात की ग्रूमिंग के साथ। आप लोग चाहते क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या आप अच्छी इनकम चाहते हैं? और अगर आप एक अच्छी इनकम चाहते हैं तो वो क्या इनकम है जिसको आप अच्छा कहते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं मुझे एक अच्छी इनकम चाहिए, तो उसमें जो उनसा है मेरे लिए अच्छी इनकम 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है और 1 करोड़ भी हो सकती है। ठीक है, और सो ऑन, जितनी मर्जी आप ज्यादा करना चाहें हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार मैं 50,000 में आई एम फाइन, मैं अगर 50,000 मुझे इनकम होती है उसके बाद मेरा बिजनेस एक अच्छा चलता है, सो दैट विल डू फॉर मी, और मैं अच्छे लाइफस्टाइल को जो उनसे वो अडॉप्ट कर सकता हूँ। सो आप चाहते हैं क्या? सबसे पहले यू गॉट टू स्टार्ट
विद द डिटेल्स, आप क्या चाहते हैं और उसको अचीव करने के लिए आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम वन बाय वन देखते हैं। लाइक आई सेड, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। और ये वो वाला ख्वाब नहीं है वंस अगेन कि आप जो सोते हुए देखते हैं और सुबह उठते हैं भूले होते हैं। दिस इज अ ड्रीम जो कि आपकी लाइफ का पर्पस है, मकसद है, जो कि आप जागती आंखों से देखते हैं, उसकी ख्वाहिश करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। सो दैट इज अ ड्रीम जो कि आपने अपनी आंखों के सामने रखना है, ठीक है। इसी तरह आपका ड्रीम और आपकी टीम के लोगों का ड्रीम, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसके मुताबिक प्लान बनाया जा सके। सेकंड स्टेप के ऊपर हमारे पास है गोल्स। जब आपका ड्रीम एक आप सेट कर लेते हैं तो उसमें आपको कुछ गोल सेट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ से लाहौर आना है, ठीक है, मैं राइट नाउ आई इन इस्लामाबाद, अगर मैंने लाहौर आना है तो मुझे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये सिर्फ एक क्लिक पे लाहौर नहीं आ सकता, अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई, लेकिन फॉर दैट इवन आई हैव टू डू दैट क्लिक, राइट, या कुछ ना कुछ चीज को कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपने ख्वाब को फुलफिल कर रहे हैं, अपने जिंदगी के मकसद को फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको कुछ एक कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए होगा, जिसे हम कहते हैं गोल सेट करना। वो कोर्स ऑफ एक्शन में आपके मुख्तलिफ छोटे छोटे से टारगेट्स होते हैं जो कि आपके बड़े गोल की तरफ आपको लेके जाते हैं और आपको ड्राइव करते हैं और आपको वो प्लेटफॉर्म देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके गोल, जो आप छोटे छोटे गोल सेट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लाहौर आना है, जैसे मैंने बस में आना है, तो सबसे पहले मैं कॉल करूंगा, कॉल करके चेक करूंगा बस की टिकट अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर गाड़ी में जाना है तो मैंने गाड़ी का पेट्रोल डलवाना है। अगर मैंने फ्लाइट लेनी है तो मैं पहले चेक करूंगा फ्लाइट अवेलेबल है कि नहीं है। फिर मुझे एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट जाके फिर मैं वहां पे भी यही चीज करूंगा कि एयरपोर्ट से उतरा, गाड़ी ली और फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा। अब आप देखिए, मेरा और डेस्टिनेशन सिंपल था कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जाना लाहौर है, दैट इज द पर्पस, लेकिन इन बिटवीन मैंने काफी सारे स्टेप्स को फॉलो किया। इसी तरह लाइफ में आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है और उन स्टेप्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बाय रोड जाना है और मैं एयर टिकट कर लेता हूँ, तो दीज आर नॉट कनेक्टेड थिंग्स, राइट। तो वो डिफरेंट एक हो जाएगा गोल की तरफ जाना। या हो सके मैं फ्लाइट, मैंने लाहौर जाना है और मैं फ्लाइट कराची की कर लेता हूँ, तो मैंने फ्लाइट तो कर ली है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और मैंने जर्नी भी कर लिया है, लेकिन वो जर्नी मुझे लाहौर नहीं कराची ले जाएगा। आई नीड टू अलाइन माई गोल्स। और वो छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे टास्क जो आप सेट कर रहे होते हैं अपनी ग्रोथ की तरफ, उनको हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स कितनी देर के हो सकते हैं, इसके बारे में आगे चल के हम डिटेल्स देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी सी एग्जांपल बताई कि मैंने लाहौर जाना है, कॉल करूंगा, कॉल करके टिकट देखूंगा, नहीं मिलती मुझे जाके रिजर्व करनी पड़ेगी, गाड़ी में जाना है, पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेंगी और कुछ ऐसी चीजों को भी देखना पड़ेगा जो कि बारीकी हैं। इसे हम कहते हैं डिटेल्स। आपने जो अपने गोल्स सेट करने हैं आपके ख्वाब के साथ जो अलाइन है, जो कि शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आपको उसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि आप ये जो काम कर रहे हैं उसमें छोटे छोटे एक्शंस और वो जो आपने राइट वे में आगे की तरफ बढ़ना है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको हम मजीद आगे चल के एक्सप्लेन भी करेंगे और इसके ऊपर बात भी करेंगे और ये किस तरह हमारे काम के साथ कनेक्टेड है इसकी भी हम बात करेंगे। ड्यू डेट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली जो लोग होते हैं, हम लोग ऑनेस्टली इंक्लूडिंग मी एंड एवरीबॉडी, हम कुछ चीजों पे एक अच्छे खासे अपनी जिंदगी के हिस्से तक गुम से रहते हैं। हमें पता नहीं होता हम क्या चाहते हैं, और अगर हमें पता होता हम क्या चाहते हैं, हमें नहीं पता होता हम कब वो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपना एक घर बनाना चाहते हैं, हम कहते हैं बस जी जब बना तो देखी जाएगी जी, अल्लाह ताला की मर्जी होगी जब बन जाएगा। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की मर्जी होगी, उसके कुन फयकून, अल्लाह के कहे बगैर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। खुदा ने कहा तो फिर चीज होनी है। लेकिन द पॉइंट इज कि आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल कि हमें अपने लिए एक ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो मुझे पता होना चाहिए मैंने कब पहुंचना है। अगर मैंने या मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं कब तक पहुंच सकता हूँ रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अगर मैं बाय एयर जाऊंगा तो मुझे जो सा है बाय एयर फ्लाइट आधे घंटे में पहुंचा देगी, तो मुझे गाड़ी भी आधे घंटे में पहुंचा देगी। नाउ डिपेंड्स कि मेरा रूट क्या है, और वो रूट आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और बाकी की डिटेल्स हैं। और ये डिटेल्स और ये शॉर्ट टर्म गोल्स आपके गोल्स को अचीव करने की ड्यू डेट्स डिसाइड करते हैं। प्लान, जब आप अपना एक प्लान करते हैं कि भाई 2 साल में मैंने अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, या मुझे 1 साल में अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को उस तरीके से अलाइन करना पड़ेगा।
आपकी चॉइस है। आप अगर कहते हैं मैंने 1 साल में अपनी इनकम को 2 लाख करना है, यू कैन डू दैट, लेकिन उसके लिए आपको अपने काम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपनी एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं नहीं यार मैं ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इट इज फाइन, मुझे 1.5 साल लग जाए या 2 साल लग जाए, अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए होती है तो स्टिल इट इज फाइन विद मी। तो फिर आप क्या कहते हैं जी, आप कहते हैं कि भाई मैं अपने बिजनेस को प्लान करता हूँ, लेकिन मैं अब ज्यादा तेज काम नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता देख के गलतियों से सीख के आगे की तरफ जाऊँ। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान्स, इसके अंदर लिखा हुआ है मंथ, वीक एंड अ डे, ये आपके गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे आखिरी स्टेप पे जाने से पहले कोट करूंगा, जो कि हमारे बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इनकम 2 लाख रुपए के अराउंड, बिजनेस में 5, 10, 15, 20 हजार ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी 6 फिगर में और 2 लाख मिनिमम हो, इसके आगे पीछे थोड़ी सी होती है, तो इट इज फाइन, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या? आई नीड 2 लाइन्स। मेरे पास पहले मैंने खुद सीनियर मैनेजर बनना है और मैंने अपनी तरह के 2 सीनियर मैनेजर और बनाने हैं। तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा अगर मैंने सीनियर मैनेजर बनना? अगर मैं 9% पे हूँ तो मेरा टारगेट सबसे पहला ये होगा कि भाई मैंने शॉर्ट टर्म गोल अपना सेट किया है कि मैंने अगले 4 या 5 महीने में सीनियर मैनेजर बन जाना। उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। मैं 12% पे अगर हूँ तो पहले मैं 15% पे जाऊंगा, ठीक है, और अगर मैं 15% पे हूँ तो फिर 18 पे जाऊंगा, उसके बाद 21 पे जा सकता हूँ। आप डायरेक्टली 21 पे भी जा सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट ऑल डिपेंड्स कि आप काम कितना करते हैं, लेकिन देयर आर स्टेप्स जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, और ये आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स है। अब अगर हम और ज्यादा डिटेल्स के अंदर जाते हैं, मैं बैकवर्ड मूव कर रहा हूँ दोबारा जहां पे हमने डिटेल्स की बात की थी। अब अगर मैंने जैसे 12% से जाना है वापस 21% पे जाना है, मैंने उससे पहले रास्ते में मेरे पास 15% और 18% भी आ रहे हैं, तो उस लेवल पे जाने के लिए 21% पे जाने के लिए मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ, मैंने करना क्या? आई नीड टीम जो कि आगे बढ़े। अगर मुझे 2 लाइन चाहिए तो मुझे लोग चाहिए ना, और ऐसे लोग चाहिए जो कि ग्रो करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो जो लोग मैंने ढूंढने, उसके लिए मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। अब अगर मैं चाहता हूँ मेरी 2 लाइन्स हो तो मुझे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, 1 लाइन के लिए कंपैरेटिवली कम करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूँ मेरी 4 लाइन्स हो, एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर दे। एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स कि आपकी टीम कितना काम कर रही है। आपकी टीम सिर्फ तब काम करेगी जब उनको अपने फायदे की कोई चीज नजर आएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपके साथ अपनी डिटेल बतानी शुरू कर देता हूँ, मैंने ये किया, मेरा ये फायदा हुआ, मेरा ये फायदा हुआ, हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे, आप थोड़ी देर सुने, लेकिन आप कहेंगे यार ये क्या, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ इसका, अगली दफा मेरी बात सुनने के लिए भी नहीं आएंगे। इसी तरह दिस इज नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। इंसान अपने फायदे में हमेशा इंटरेस्टेड होता है, तो उसको कहाँ पे फायदा हो रहा है। तो जब आप अपनी टीम्स के साथ बात करेंगे तो ऑलवेज टॉक अबाउट देयर गोल्स, डू नॉट टॉक अबाउट योर्स। अगर आपने अपने गोल्स को डिस्कस करना है, अपने लीडर के साथ डिस्कस करें, और आपके लीडर का काम है वो आपके साथ डिस्कस करें, आप अपने एएसएम्स के साथ डिस्कस करें इन चीजों को, ठीक है, और अपनी टीम्स के साथ उनके गोल्स की बात करें, क्योंकि उनके गोल्स आपके गोल्स के साथ अलाइन है, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टीम ओरिएंटेड हो, अपनी टीम को आगे की तरफ लेके चलें, क्योंकि टीम का सक्सेस आपको सक्सेसफुल करेगा। यहाँ पे वंस अगेन जी मुझे लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, हाथ एकदम सारे इकट्ठे खड़े हो गए हैं, तो प्लीज इट्स ओके, आपके जितने क्वेश्चंस हैं विल टेक देम इंशाल्लाह ताला, मैक्सिमम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस लेने, कोई चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करने से प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आपकी लाइंस में, आप समझ लें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने की, लोगों के ग्रो करने की। आपके पास 10 लोग हैं, देर आर चांसेस उनमें से 2 आपके पास मैनेजर आ जाए। अगर आपके पास 100 लोग हैं तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके पास 4 मैनेजर भी आ जाए, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और आपने अपने डेली, वीकली और मंथ के टास्क को आपने डिवाइड करना है। अगर मैंने टारगेट किया है कि भाई इस महीने में मैंने 10 नए लोग अपने पास लेके आने हैं, उन 10 नए लोगों के लिए लाने के लिए मुझे वीक में कितना काम करना है और डेली बेसिस पे कितना काम करना है, मैंने इसको प्लान करना है, ठीक है। अगर आप एक पेन एंड पेपर पकड़ लें और आपके पास एक डायरी हो, आप उसके अंदर अपना एक छोटा सा प्लान बना लें कि भाई मैंने रोज के 5 लोगों को जो है वो प्रोस्पेक्ट करना है,
मैंने 2-3 लोगों से ट्रेनिंग अटेंड करनी है और मैंने वीक में 1-2 ट्रेनिंग्स देनी भी है, ठीक है। और जैसे जैसे आप वो टास्क अपने कर रहे हैं आप उनको चेकआउट करते जाएं, ठीक है। नो दैट इज अ प्रॉपर प्रोफेशनल वे। और जब भी आप रिटर्न काम करते हैं उसका बेहतर रिजल्ट होता है। तो वंस अगेन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स छोटे छोटे टास्क में डिवाइड होकर आपके मंथ वीक में डिवाइड हो जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। कि आप उनको प्लान कर रहे हैं, अपने गोल्स के साथ अपने एक्शंस को अलाइन कर रहे हैं। फिर आ जाता है जी सस्टेन्ड एक्शन। अब होता क्या है, शुरू में जब भी हम एफर्ट्स करते हैं, वंस अगेन मैं बात अपनी रिपीट करूंगा, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। दुनिया में मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक ऐसा शख्स नहीं देखा अभी तक जो कि डायरेक्टली सक्सेसफुल हो गया हो। तो आई वुड से कि अगर कोई भी शख्स सक्सेसफुल है वो फेल हो गया सक्सेसफुल हुआ है, एंड आई कैन गारंटी दैट अगर नहीं है कोई तो डू लेट। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, आई विल नेम देम एंड यू विल बी अमेज्ड। देयर आर एग्जांपल्स जहां पे आप कहते हैं और कमाल का बंदा है भाई, इसने तो जिंदगी में अपनी एक हिस्ट्री बना दिया, लोगों की हिस्ट्री लिखी हुई है, ऐसे ऐसे लीडर्स। लेकिन दे यू नो दे वर अ फेलियर एट अ टाइम, और उसके बाद जो उनसे वो सक्सेसफुल हुए। और ये फेलियर एक ऐसी चीज है जो कि आपको रोक देता है, आपको आगे जाने से, आपको कहता है कि नहीं भाई ये तेरा काम ही नहीं है, नहीं कर सकते आप ये, ठीक है। आपको ऐसे मैसेजेस आएंगे आपके ब्रेन से, लोगों से, ऐसी नेगेटिव बुलेट्स आएंगी कि आप रुक जाएंगे। नाउ यहाँ पे आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं बाय सस्टेन्ड एक्शन। आपका जो एक्शन है अगर वो सस्टेन्ड है, आप फेलियर आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप अपने काम पे डटे हुए हैं, आप फंसे हुए हैं वहां पे, और आप कह रहे हैं भाई मैंने ये काम करके छोड़ना है, ठीक है। और फेलियर आया, इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, और आप सस्टेन्ड रहते हैं। तो आप यकीन कीजिएगा ये जो आपका पहले वाला था ना ड्रीम, जो आप जहां से आपकी बात स्टार्ट हुई थी, ये कब रियलिटी में बदलता आप इस चीज को आप रियलाइज भी नहीं करते, और आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। और इंसान कभी भी नहीं रुकता, जब वो वहां पे पहुंचता है वो फिर मजीद डिजायर करता है, उसका उसका नया उसके लिए एक मोटिवेशन आ जाती है। वो कहता है नहीं यार यहाँ पे नहीं, अब आई नीड टू गो बियॉन्ड दैट। तो आप उसके बाद भी आ सकते हैं क्योंकि लाइफ इज लॉन्ग। अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं तो जोन सा जिंदगी जोन से उसमें आपको काफी टाइम भी मिलता है, लेकिन जो गुजर जाता है वो फिर एक ब्लिंक ऑफ एन आई में जाता है। लेकिन ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम, ट्राई टू हेल्प पीपल, एंड दैट विल मेक यू सक्सेसफुल एक्चुअली, एंड दैट इज कॉल्ड सक्सेसफुल। अगर आप जब भी कोई काम करेंगे आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी तो आप खुश फील करेंगे, आप लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे इसके ऊपर। तो आपका ख्वाब, आपका सक्सेस सस्टेन्ड एक्शन और इन कुछ चीजों के साथ कनेक्टेड है, जिसके अंदर गोल सेटिंग है, डिटेल्स हैं, ड्यू डेट्स आप अपने लिए जो सेट करते हैं, प्लान करते हैं आप अपनी चीजों को। सो दैट इज समथिंग जिसका आपने ख्याल रखना है जी। अगर हम ओरिफ्लेम की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे दी गई हैं। अगर हम कहते हैं हमारा एक नया ब्रांड पार्टनर, उसका जर्नी स्टार्ट होता है कंसल्टेंट लेवल से, हमारे पास मुख्तलिफ लोग आते हैं। आपने अपने आप से भी ये क्वेश्चन करना है, और मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज को रिपीट करता रहता हूँ क्योंकि आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को पहचानें। हम क्या चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट। हमें थोड़ी इनकम चाहिए, हम इसको एज अ साइड बिजनेस लेके जाना चाह रहे हैं, या हम दोनों काम करना चाह रहे हैं, साथ टीम मेकिंग के साथ कमीशन अर्न करें और साथ साथ हम अपने इमीडिएट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें। इमीडिएट प्रॉफिट की भी अगर हम बात करते हैं, असलम साहब ने हमें डिटेल में इसके बारे में बताया, साथ टीम मेकिंग, कमीशन और बोनसेस के बारे में बताया। तो अभी हाली इमीडिएट प्रॉफिट के ऊपर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, खासतौर पे वीआईपी कस्टमर के ऑप्शन आने के बाद। आई मीन आप में से वो लोग जो कि इसको राइट वे में ट्राई कर रहे हैं उनको पता होगा कि वीआईपी कस्टमर क्या चीज है। ये एक वो ऑप्शन है जो कि डिजायर्ड थी, बहुत सारे लोगों का ड्रीम था, ये ऑप्शन है वो हमारे पास आ गई हुई है, आपके डायरेक्ट इमीडिएट प्रॉफिट के साथ वो कनेक्टेड है और बाद में वो आपकी टीम का हिस्सा भी बन सकता है। तो सबके लिए फायदे की चीज है जो हमारे पास इमीडिएट प्रॉफिट है, और इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो गया है। लेकिन वंस अगेन अगर आपके ड्रीम्स हैं, सस्टेन्ड इनकम चाहिए आपको, आपने लाइफ चेंज करनी है, लोगों की, अपने घर वालों की एक सुकून जिंदगी चाहिए जिसमें आप एक प्लेटफॉर्म बना दें और उसके साथ साथ फिर आप अपने बाकी के काम और लाइफ को एंजॉय करते रहें। सो दैट इज बाय टीम मेकिंग, ठीक है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आप अपना गोल सेट करते हैं, वो आपका इंटरमीडिएट गोल भी हो सकता है और वो आपका लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया आप सक्सेसफुल हो गए, आपने उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल सेट किए थे, ठीक है। उसके बाद आपने लॉन्ग टर्म गोल सेट किया था अपना कि 2 साल के अंदर आपने लेट्स से डायरेक्टर बनना है, या आपने गोल डायरेक्टर बनना है। जब आप वहां पे पहुंच जाते हैं फिर आपका लॉन्ग टर्म गोल भी आ सकता है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म गोल क्या है जी आपका, कि आपने
आपने गोल्ड डायरेक्टर नहीं, आपने डायमंड डायरेक्टर बनना है। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे हमने गोल्ड डायरेक्टर लिखा हुआ है। यू कैन बिकम अ डायमंड डायरेक्टर इन 2 to 3 years। आई कैन गारंटी यू दैट। हमारे पास एग्जांपल है, बल्कि इसी साल की हमारे पास एग्जांपल है। पिछले अगर आप 1 साल गुजरे, हमारे पास डायमंड डायरेक्टर पे विद इन लाइक कपल ऑफ ईयर्स पहुंची हैं हमारे पास। ठीक है, मैं मैम रिजवाना की बात कर रहा हूँ। देयर आर एग्जांपल्स, देयर वाज मैम शाइमा, उन्होंने जल्दी अपना किया। फिर हमारे पास सफायर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैम हुमैरा, मैम अंबर। आई कैन कीप telling you the names। there are many names जिनके अब बहुत बड़े बड़े टाइटल्स हैं। the point is कि ये लोग जो उनसे हैं, इन्होंने इस तरीके से काम स्टार्ट किया और इस तरीके से आगे की तरफ लेके बढ़े। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको पता होने चाहिए कि एक चीज होती है कि आप सर्वाइवल मोड से बाहर निकलते हैं, ठीक है, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है। फिर अगर आप आगे जाते हैं, आप ग्रोथ की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। फिर आपका हो जाता है कि आप प्रोस्पेरिटी की तरफ जाते हैं। दैट इज द पॉइंट जहाँ पे अगर आप प्रोस्पेरस होना चाह रहे हैं, आप इस सिचुएशन में आना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको अपनी टेंशन कोई नहीं है, अब आपको इर्द गिर्द के लोगों को सक्सेसफुल करना है। सो दैट इज योर अल्टीमेट गोल कि आप उस सिचुएशन के अंदर आ जाए। एंड आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी मजीद लॉन्ग टर्म उसके आगे भी अपने गोल सेट कर सकते हैं। यू कैन कीप गोइंग, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना आगे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो यू गोटा हैव दैट प्लान कि पहले मैंने 9% पे आना है, 6 से 9 पे आना है, फिर 12 पे, 12 से मैंने 18 पे, फिर मैंने 21 और फिर मैंने अपनी इनकम को ज्यादा करना है। ये चीज मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि एक सीनियर मैनेजर आराम से अपनी इनकम को जो है वो 1 लाख से ऊपर लेके जा सकता है, बहुत आराम से। जैसे मैंने आपको बताया, 1, 3 या 6% वाला आपका 5 से 8 हज़ार रुपया ऐड करता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बीपीज जो उनके ग्रुप बीपीज हैं और वो कितना काम कर रहे हैं, कितने कंसिस्टेंट है। ठीक हो गया जी। आगे चल के हम थोड़ी सी मजीद डिटेल्स देखते हैं जी। अभी तक हमने एक एग्जांपल देखी है कि जब हम ख्वाब देखते हैं, अपने ख्वाब को आइडेंटिफाई करते हैं, वंस अगेन अपने मकसद को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्या आगे की तरफ किस डायरेक्शन में आगे जाना चाह रहे हैं। वंस अगेन आपका जरूरी नहीं आप पैसे की तरफ फोकस करें, इनकम की तरफ फोकस करें। इट कैन बी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, इट कैन बी कि आप एक अच्छे ट्रेनर बन जाए, आप मेंटोर बन जाए, आप अपना नाम बना लें एक इंडस्ट्री के अंदर। यू कैन आल्सो डू दैट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास भी बहुत सारे लीडर्स हैं, उनके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं। आई मीन दैट इज अमेजिंग। अगर कोई भी शख्स देखता है तो वो इंस्पायर ही होता है कि भाई इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, अच्छा फीडबैक आता है उनका, और वो लोगों को सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ख्वाब हैं वो है क्या, आपका पर्पस क्या है, वो डू यू वांट एक्चुअली। सेम गोज फॉर योर टीम एज वेल, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके मुताबिक आप अपना एक्शन प्लान या अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है वो डिवाइस करते हैं। ठीक हो गया जी। अब ओरिफ्लेम आपको क्या हेल्प करता है और ओरिफ्लेम में आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, व्हाई ओरिफ्लेम इज डिफरेंट। क्योंकि हमारे पास ओरिफ्लेम का जो सिस्टम है इसमें डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा आसान है। आपने जो चीजें सीखी हैं और आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, वही चीजें आपने अपने टीम मेंबर को बतानी है। सो इट इज वेरी इजी टू डुप्लीकेट इन ओरिफ्लेम। अगर हम बात करते हैं ओरिफ्लेम में, SRP हमें कुछ चीजों के बारे में बताता है। और ऑनेस्टली अगर हम सारे, वो कहते हैं ना कूजे में बंद करना सारी चीजों को, कौन सी एग्जांपल है मैं भूल गया हूँ, तो अगर मैं इस सारी की सारी चीजों को निचोड़ निकाल दूं तो वो दैट इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। शेयर, इनवाइट एंड एंगेज, ये 3 चीजें हैं जी। आज के टाइम के अंदर अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, सेल करना है, तो शेयर करें, आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। इनवाइट का मतलब ये है कि आपने ऑर्डर प्लेस करवा दिया या टीम आपके पास एक मेंबर बन गया है। एंगेज का मतलब ये है कि आपने उन लोगों को एंगेज कर लिया। रिपीटेड कस्टमर, लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर हमेशा आप कॉस्ट कम करता है, आपका टाइम कम कंज्यूम करता है, वो सिर्फ ऑर्डर प्लेस करता है अगर आपने उसको पहली दफा अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया। आपको कनेक्टेड प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जब आप उसे फीडबैक लेते हैं चीज़ों के बारे में तो आपको जो उनसे आप उनको एंगेज रखते हैं, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा जिनके पास कंज्यूमर है, आपको हर मंथ ऑर्डर आता होगा और आप कहते होंगे लो जी ऑर्डर आ गया, और आप कभी कभी इंतजार करते हैं अभी तक ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि आपके पक्के कस्टमर लग गए हैं जी वो। तो ये जो पक्के कस्टमर होते हैं ये आपके, जब आप उनको एंगेज करते हैं वो तब बनते हैं आपके। ठीक है, तो शेयर करें, अपनी जितनी डिटेल्स बता सकते हैं राइट वे में शेयर करें। आने वाले टाइम के अंदर हम इस मंथ के अंदर आपको ना एक ट्रेनिंग देंगे पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी, लेकिन उसमें थोड़ा एडवांस नॉलेज होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसमें जितना ज़्यादा आपको हम गाइड कर सकें, वो भी हम आपको गाइड करें उसके ऊपर। तो शेयर आप जब करते हैं किसी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन, नाउ इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोग मजबूरी में शेयरिंग करते हैं। अब ये अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों से बात कर रहा हूँ
और मैं तंग बैठा हूँ, लाइफ से मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों से बात करूँ, मेरा बोलने का भी दिल नहीं कर रहा, तो आप लोगों को एक फीलिंग आ जाएगी, आप कहेंगे यार ये एएसएम तंग पड़ा हुआ है किसी चीज से, इसका बोलने का भी नहीं दिल कर रहा और ट्रेनिंग करने के लिए आ गया है, बहुत सारी चीजें, शायद आप मेरी इज्जत रख लें, अल्लाह ताला इज्जत रख लें, लेकिन द पॉइंट इज कि आपको फील हो जाएगा डीप डाउन इनसाइड कि यार ये बंदा जो सा ये दिल से कुछ नहीं कर रहा है, इसको कोई टेंशन है। इसी तरह जब आप लोग कोई चीज शेयर करते हैं और आप मजबूरी में करते हैं ना, तो दूसरा बंदा फील कर लेता है यार ये बंदा बड़ा ही मजबूर है ठीक है, इसका कोई इतना बिजनेस नहीं चल रहा, ये टेंशन के अंदर है। तो व्हेन यू शेयर यू गॉट हैव दैट एक्साइटमेंट, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। शेयर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जो सा है चीज किसी को बेच रहे हैं, शेयर का मतलब है यू आर जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। शेयरिंग मीन्स यू आर शेयरिंग योर फीडबैक। शेयरिंग का मतलब है कि आप अपना अपना एक्सपीरियंस लोगों को बता रहे हैं, आप बता रहे हैं मैंने ये प्रोडक्ट ऐसे यूज किया था, मुझे ये फायदा हुआ, दिस इज व्हाट आई थिंक, हाउ दिस इज बेस्ट, ये किस तरीके से बेहतर है। आप ये चीजें बता सकते हैं लोगों को शेयर करने का, लेकिन वंस अगेन एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, नॉर्मल वे के अंदर बताएं उनको, उनको पता चले यार ये वाकई ये बंदा जो है इसको ये चीज अच्छी लगी, अच्छा नॉलेज है इसके पास, या ये जो चीज बता रहे हैं ठीक बता रहा है, ठीक है। लेकिन मजबूरी में शेयर करेंगे, पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड। जब आप शेयर करते हैं, फॉलो अप करते हैं, आप इनवाइट करते हैं, आप उनको कहते हैं ट्राई करो, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसका मैंने फीडबैक दिया था, मस्ट ट्राई है यार, आपको ट्राई करना चाहिए, एक ये तरीका है। और एक ये तरीका है जी, ये मेरे पास कर्सर पड़ा हुआ है, इसको आप खरीदें, बड़ा जबरदस्त है जी, ठीक है, ये इसके बड़े फायदे हैं, इसमें ये फायदा है कि आप जो उनसे है इसको यूज करेंगे, इट्स वेरी इजी, इसमें आपको लाइट का मसला नहीं आएगा, इसमें क्लिक बड़े आराम से हो जाता है। एक ये तरीका है कि यार ये मैंने ट्राई किया, इसने तो मेरी जिंदगी को आसान कर दिया। आई थिंक कि आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। ये जो कर्सर है ये आपकी डेली लाइफ की यूज की चीज है और आपको टेंशन नहीं होने लगी इसके बाद कभी। नाउ पहली स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी मजबूरी टाइप लग रही थी कि मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, जब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं इसको ट्राई करता हूँ, मेरी तो जिंदगी आसान हो गई है, नाउ दैट विल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल। एक्सक्यूज मी, तो दैट इज समथिंग कि जिस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, शेयर करने का एक तरीका है, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली वो शख्स इंटरेस्टेड होगा, वो आपसे बाय करेगा, और फिर आई टेक द फीडबैक, मैं पूछूंगा हाँ जी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों से एक्सपीरियंस उनका पूछें और उनको एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे कंटिन्यूसली नॉलेज शेयर हो रहा है, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें इस चीज के बारे में कि कैसा फीडबैक है। आप एक कस्टमर, हम ओरिफ्लेम के अंदर कहते हैं कि हम सेल नहीं करते चीज, हम एक रिलेशनशिप नया ओपन करते हैं, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को मेंटेन करना है। और आप ये देखिएगा, ये तो भी आपको चार्ट नजर आ रहा है, इसमें सबसे बॉटम के ऊपर आपको कोई हल्के हल्के छोटे छोटे से वो व्हाइट कलर के सर्कल्स बने हुए नजर आ रहे हैं। ये सर्कल्स पता है कौन है जी? ये सर्कल्स वो लोग हैं जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं इस टाइम, लेकिन आप उनसे बातचीत नहीं करते, और ये बहुत ज्यादा लोग हैं आपके इर्द गिर्द जिनको ओरिफ्लेम के बारे में नहीं पता। उनमें से कुछ लोगों को आप ओरिफ्लेम के बारे में बताते हैं, उन कुछ लोगों में से भी कुछ लोग आपके कंज्यूमर बन जाते हैं, आपसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, 3% पे आ जाते हैं, 6% पे भी आ जाते हैं, कुछ लोग काम स्टार्ट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और उसके बाद जो उनसा वो रुक भी जाते हैं, कभी कभी ऑर्डर आता है, कभी कभी कुछ लोगों से आपको, कभी आपको ऑर्डर नहीं भी आता लोगों से। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है बात मोटिवेशन। जब आप इनकी मोटिवेशन और टीम मेकिंग के ऊपर काम करेंगे और उनको वो लर्निंग्स देंगे जो कि आपने हार्ड वे में सीखी, हमारे पास एग्जांपल्स हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया और उनकी सोच इस तरह की बन गई कि उन्होंने कहा यार ये सारों को फेस करनी चाहिए प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, ठीक है। एंड वी डू हैव एन एग्जांपल ऑफ पीपल, ऑफ मैनी पीपल, जो कि कहते हैं यार ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं, ये और मेरा जानने वाला कोई फेस ना करे। और ये फ्लेम में अगर आपकी अप्रोच ये है ना कि आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें और अपनी हार्ड लर्निंग से लोगों को ग्रो करवाएं, आपके लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट ये होना चाहिए कि अगर आपके हाथ से बनाया हुआ कोई बंदा या आपका कोई डाउन लाइन का बंदा या आपका स्पॉन्सर, आप जिसको आपने स्पॉन्सर किया हो, वो शख्स आप एक अच्छे टाइटल पे ले जाए, बेशक वो आपसे बातचीत ना कर रहा हो, लेकिन दैट शुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर यू। तो अगर आपकी ये अप्रोच है कि आप लोगों पे काम कर रहे हैं, तो आप ये जो ग्रे कलर के आपको लोग नजर आ रहे हैं जिसमें ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर्स हैं, आपने उनकी मोटिवेशन, उनके ख्वाब पे काम किया, उनके लिए गोल सेटिंग की, उनको हेल्प किया, आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन आपने उनको जल्द टाइम में सिखा दिया, तो डुप्लीकेट होनी शुरू हो जाएंगी चीजें। और इन लोगों में से, ब्रांड पार्टनर्स में से आपको कुछ मैनेजर्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो कि ऑरेंज कलर में आपको रिफ्लेक्ट
करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये आप देख रहे हैं शुरू में बहुत लोग हैं आपके, चंद लोग आए ब्रांड पार्टनर बने, उनमें से फिल्टर आउट हो गए बहुत सारे लोग, चंद लोग आपके पास रह गए जो कि मैनेजर बने। उन चंद लोगों में से कुछ ऐसे आपके पास लोग निकल आएंगे जो कि लीडर होंगे। यहाँ पे हमारे पास इस टाइम 400 लोग हैं जो ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। 400। आई कैन गारंटी यू जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल है, आप सारे के सारे सीनियर गोल्ड डायरेक्टर बन सकते हैं जितने बैठे हुए। यहाँ पे हमने 3 लाइंस की बात की है सिर्फ एग्जांपल में शो करने के लिए। इट कैन बी 2 लाइंस, इट कैन बी 4, इट कैन बी 6 लाइंस, डिपेंड्स ऑन यू। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। पाकिस्तान में आप देख लें, आप वंस अगेन मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। आई कैन गारंटी यू कि आपकी बैक स्ट्रीट में जितने लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि आप ओरिफ्लेम का काम करते हैं। हो सकता है अगर बैक स्ट्रीट वालों को ऐसे, चलो मैं मान लेता हूँ पता है, उससे पिछली वाली गली वालों को नहीं पता होगा। ठीक है, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी एरिया में रहते हैं, तो आप मैक्सिमम 2 स्ट्रीट्स आपने चले वो भी कवर कर ली, उससे पिछली गली वालों को गारंटीड नहीं पता होगा कि आप ओरिफ्लेम का काम करते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो कि आपको बॉटम पे व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। लोगों ने बातें करनी, लोगों ने आपको कहना ही कहना है कि यार ये काम नहीं ठीक। लोग डॉक्टर्स को भी नहीं ठीक कहते, लोग लॉयर्स को भी नहीं ठीक कहते, लोग किसी को नहीं छोड़ते। तो अगर आप लोगों की बातों में आ गए तो ओरिफ्लेम में सक्सेसफुल नहीं होंगे आप, ये भी एक पक्की बात है। लिहाजा यू विल हैव टू इग्नोर एंड डॉज ऑल दोज नेगेटिव बुलेट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम सराउंडिंग्स। आपने लोगों की इन चीजों को छोड़ देना है। वही आपने शायद वो एग्जांपल सुनी हो, वो जो मेंढक वाली है कि रेस होती है जी, मेंढक के अंदर मेंढकों की रेस होती है, सारे भागते हैं। आप मेंढक कह लें, रैबिट कह लें या टर्टल कह लें, कोई भी आप रेस लगा दें तो वो रेस हो रही होती है। तो एक जोन है वो 5-6 जोन से हैं अपने कंपेटिटर्स को छोड़कर जल्दी जल्दी डेस्टिनेशन पे एक जोन से बड़ा तेज भागता हुआ जोन से वो रैबिट पहुंच जाता है। तो बाद में पता चलता है कि वो सबसे पहले इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि वो डेफ था, उसको आवाज ही नहीं आती थी लोगों की। बाकी लोगों के शोर की वजह से डिस्करेज होते रहे, और यानी कि रैबिट्स, और जो उनसे हैं वो आगे नहीं पहुंच सके अपनी डेस्टिनेशन पे। तो यू गोटा इग्नोर फ्यू थिंग्स। क्विक मैसेज आपको दे रहा हूँ, इग्नोर फ्यू थिंग्स जो कि आपको डिस्करेज करती हैं, डीमोटिवेट करती हैं। स्टे मोटिवेटेड, ट्राई टू स्टे हैप्पी इन लाइफ। आपके पास जब आप पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्ट करती है, खिंचे चले आएंगे लोग आपकी तरफ। आप यकीन करें, अगर आप लोग जो उनसे हैं पॉजिटिव हैं तो आपको ये चीज को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप एक टाइटल के ऊपर मौजूद है, यू डू हैव सम सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू एंड एग्जीक्यूशन इज द की। यहाँ पे कुछ रोल्स लिखे हुए हैं। अगर एक नया ब्रांड पार्टनर एक लीडर वाला काम करना शुरू कर देगा तो वो ठीक तरीके से नहीं कर सकता। इसी तरह अगर एक लीडर ब्रांड पार्टनर वाला काम करता है वो तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज हिज यानी कि डिस्क्रिप्शन एज वेल, कि वो बेसिक से लेके अपने लेवल तक के सारे काम कर रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना, द ग्रेटर रोल्स कम द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपका अगर रोल ज्यादा बड़ा है, आपका टाइटल ज्यादा बड़ा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। आसान काम किसका है? नए ब्रांड पार्टनर का। थोड़ा सा मुश्किल काम किसका है? लीडर्स का। क्यों मुश्किल है उनका काम? क्योंकि उन्होंने सब चीजों को साथ लेके चलना है। लेकिन वो काम उनको आसान इसलिए लगता है क्योंकि वो सीख चुके होते हैं। जब आपको एक दफा काम करना आ जाता है तो आपको आसान लगता है। ब्रांड पार्टनर्स को काम है उनका बहुत आसान, लेकिन उनको मुश्किल लगता है। जो भी नए हैं उनको मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि अभी लर्निंग फेज के अंदर है, उनको प्रॉपर तरीके से सिस्टम की समझ नहीं आई। लिहाजा अगर हम ब्रांड पार्टनर्स के कुछ रोल्स की बात करते हैं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एज वेल। आपको अगर किसी चीज की समझ नहीं आती बाद में भी आपको पता चल जाए, ताकि देखिए यहाँ पे कुछ रोल्स लिखे हुए हैं कि आपने करना क्या है। अगर आप ब्रांड पार्टनर लेवल पे मौजूद हैं तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आप अपना ऑर्डर इकट्ठा करें और प्लेस करें, अपना भी और करवाएं भी, और प्रोस्पेक्टिंग करें, नए लोगों को इन्वाइट करें। लेकिन खुद ट्रेनिंग अभी ना दें जब तक आपको देनी नहीं आती, जब तक आपको प्रॉपर सिस्टम की समझ नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आए और आप इंस्पायर करने के लिए अपने पास से कोई जवाब दे दें और वो गलत हो। ठीक है, सो यू कैन लर्न फर्स्ट बिफोर इंस्ट्रक्टिंग और टीचिंग टू समवन। तो आप पहले सीखें, फिर उसके बाद आप अपनी ओएम्स करें, इम्प्लीमेंट करें, सीखें। जो आपके लीडर आपके साथ बात करते हैं बताएं। आप बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, वो कहेंगे यार ये भी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, मैं इसे क्या सीखूं। आप उनको अपने नेटवर्क की एग्जांपल दे सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं मैनेजर्स की, तो मैनेजर्स जोन से हैं वो एसआरपी, आपने ब्रांड लेवल पार्टनर पे हमारे पास मौजूद है। मैनेजर्स जोन से हैं वो उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उनका काम है कि वो ओएम्स कंडक्ट करें, वो कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने लोगों को मोटिवेट, पोएम्स के अंदर डिटेल डिस्कस करें।
लीडरशिप एकेडमी की मीटिंग्स हमारी अटेंड करें, जो हमारा SRP उसकी हम बात कर रहे हैं। अपने सीनियर मैनेजर टाइटल की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, लोगों को ग्रो करवा के उनके साथ। इसी तरह अगर हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं, उनके रोल डिफरेंट है। उनका काम आप देखें, वो 2 या 4 OM वो भी कंडक्ट कर रहे हैं जो कि मैनेजर कर रहे हैं। वीकली मीटिंग्स उन्होंने करनी शुरू कर दी अपने नेटवर्क के साथ। हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं। बड़े बड़े हमारे लीडर जोन्स हैं, वो कंटिन्यूसली वीक में 1-2 OMs कंटिन्यूसली कंडक्ट करते हैं, यानी कि बहुत अरसे से करते हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर उनकी डाउनलाइन के बहुत सारे नए लोग आ रहे होते हैं। ठीक है, उनका काम होता है कि डायरेक्टर का काम है कि वो अपनी लाइंस बनाए ताकि वो गोल्ड डायरेक्टर बने, और फिर वो सीनियर गोल्ड बने, सफायर बने, आगे की तरफ बने। तो उनका काम है कि वो लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। तो ये कुछ रोल्स लिखे हुए हैं। आप जिस रोल में मौजूद हैं, यू शुड नो कि आपने कौन सी चीजें जो सी हैं वो करनी है। ये जो प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं और ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको एग्जीक्यूट करें, इसके ऊपर काम करना शुरू करें। अगर आप कहते हैं लो जी मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने कैसे काम करना है, कैसे जो है वो आगे की तरफ बढ़ना है, मैंने तो बड़ी कोशिश की है। माय क्वेश्चन इसके, ये जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं कि आपने ये की हैं, क्या आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं रोज के 3 लोगों से? अगर आप में से कोई भी शख्स मुझे ये कहता है और क्लेम करता है कि मैं रोज 3 लोगों से बात करता हूँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आप 3 लोगों से बात करते हैं। फिर उसके बाद एक मैं आपको लर्निंग बेस पे चीज बताऊंगा अपनी, वंस अगेन, कि अगर आप वाकई ऐसे कर रहे हैं, अगले 6 महीनों में आप सीनियर मैनेजर होंगे। जस्ट टॉक टू 3 पीपल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन करता है, यू शुड नो कि आपने अपने बारे में नहीं बात करनी, आपने उनके सक्सेस के बारे में बात करनी है। आपने उनको सक्सेस की तरफ लेके आना, आपने उनकी मोटिवेशन की बात करनी है। उनको किसी भी पॉइंट पे अगर ऐसे ये लगेगा, उनको बताएं कि आपको भी फायदा है, लेकिन आपको फायदा तब है जब वो सक्सेसफुल हो, उनके सक्सेस में आपका सक्सेसफुल जुड़ा है। क्योंकि हमारे पास एक और साइकी है बहुत सारे लोगों की, वो ये है, वो कहते हैं यार ये इसका फायदा हो रहा है, इसका फायदा हो जाएगा अगर मैंने ये काम किया। नहीं यार मैं नहीं करता। बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं काम करते। तो यू गॉट टू टेल कि आपको सक्सेसफुल करूंगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। आई विल मेक श्योर कि यू बिकम सक्सेसफुल। मैं जो चीजें कर रहा हूँ मैं आपसे डुप्लीकेट कराऊंगा। लेट्स जस्ट बी सक्सेसफुल ऑल टुगेदर। ठीक है जी। तो ये एक हमारे पास डायरेक्शन है इसकी। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बॉल आपके कोर्ट के अंदर है। मैंने आप लोगों के साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर किया, असलम साहब ने पोटेंशियल शेयर किया और फ्रेम का, मैंने कुछ आपको उसकी बेसिक लेवल के ऊपर डिटेल्स बताई हैं कि आप क्या चीज़ें करें, क्या चीज़ें मिसिंग है। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा जी। और थैंक यू फ्रॉम आवर साइड। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कि आप पूछने वाले हैं। एक ये कि लोग कहते हैं ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स महंगी हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ये पूछ सकते हैं कि जो उनसा है लोग आते हैं टीम में छोड़ के चले जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि जो उनसा है आजकल लोगों की बाइंग पावर नहीं है, खरीद नहीं पा रहे। ये 2-3 क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। तो वंस अगेन मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ आपके इर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये प्रोडक्ट्स को अफोर्ड करते हैं। बेतहाशा कंज्यूमर ऐसा है जिसको आपने जो उनसे अप्रोच ही नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो आपने राइट प्रोडक्ट को राइट कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करना है और ये आप नॉलेज के साथ सीखेंगे चीज़ें। सेकंड, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स महंगी नहीं है। ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। रिमेंबर दैट पार्ट और बी कॉन्फिडेंट। आई कैन गारंटी यू दैट एंड यू शुड आल्सो बी प्राउड ऑफ इट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। वंस अगेन आई जस्ट ट्राई टू टेक 5 क्वेश्चंस। मेरे पास असलम साहब यहाँ पे मौजूद होंगे। अगर मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो मैं असलम साहब से रिक्वेस्ट कर दूंगा जी कि वो हमें थोड़ा हेल्प कर दें। Otherwise, I'll just try to take like 5 questions from you guys. 5 questions only, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहे होंगे क्वेश्चन सेम टाइप के तो वो मैं करूंगा जी। अच्छा जी, इसमें इंपॉर्टेंट वाले और मुश्किल वाले I'll just try to pick, ठीक हो गया, जो कि सारों को फायदा हो सके। अच्छा, एक आ गया जी। ओके, रिकॉर्डिंग विल ट्राई कि आपके लिए अवेलेबल हो जाए, राइट। ओके, फिर जी एक हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि लिमिट कब खत्म होगी। नाउ दैट इज अ क्वेश्चन जो कि बड़ा इस टाइम हिटेड किस्म का क्वेश्चन होगा बहुत सारे लोगों का कि प्रोडक्ट्स पे लिमिट लगी। हम सब लोग एक कॉमन चैलेंज से गुजर रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज अ ओरिफ्लेमियन। लीडर्स के साथ अपने बात करें, आपको और अच्छे तरीके से इसके बारे में वो बताएंगे। ठीक है, हम एक कॉमन चैलेंज से गुजर रहे हैं जिसमें कुछ चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। डिस्पाइट ऑफ दैट वी डू हैव प्रोडक्ट्स। Despite of that, we had many new titles last month, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ग्रो किया, बहुत सारे लोगों ने अच्छी इनकम अर्न की, बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया किसी के भी अभी तक।
दुआ करें कि जितनी जल्दी चीज़ें बेहतर हों वो हो सके, क्योंकि एक चीज़ कंट्रोल में नहीं होती, उसमें हम दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ इस चीज़ की कि जितने हमारे कंटेंट डायरेक्टर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, शायद ही कोई कर सकता हो। इज लाइक गिविंग हिज बेस्ट कि ये जल्दी से जल्दी चीज़ खत्म हो सके अपने लेवल के ऊपर। और वो उन्होंने अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट भी यूज़ किए हैं कई कि ये हम जो हमारे लोग हैं उनको ये ट्रबल ना आए। तो ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। बाकी अब दुआ करेंगे अल्लाह ताला आसानी पैदा करें। हमारे पास वाफर मिकदार में जैसे पहले प्रोडक्ट्स थी, तो चैलेंज तो फ्रॉम टाइम टू टाइम मेरा है इसका, लेकिन ये जो लिमिट है ये जल्दी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये मैं आपको यही कह सकता हूँ। इसके ऊपर कीप वर्किंग हार्ड, अवेलेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, प्लानिंग के साथ चलें ताकि आपको लिमिट की टेंशन ही ना हो। वाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर खेलें, 2-4 प्रोडक्ट्स पे बिजनेस ना करें, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सबको इन यूज लेके आए ताकि आपका कंज्यूमर हर टाइप का इंक्रीज करे। ठीक है, अच्छा जी, ओके मैं अभी क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू पिक क्वेश्चन जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं उनको नहीं करूंगा, जो मैक्सिमम लोगों को एड्रेस करेंगे होगा जी। मैम रामिया ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी कि इंशाल्लाह जी जल्द कामयाब हो जाऊंगी। इंशाल्लाह मैम रामिया, वो विश यू बेस्ट। सर कस्टमर कैसे बनाएं, कंज्यूमर कैसे बनाएं? देखें दानी साहब आपका क्वेश्चन है ये वाला, और एक नॉर्मल चीज़ है ये कि जो हर एक के माइंड में आती है कि कंज्यूमर कैसे बनाएं। सिंपल प्रोडक्ट्स के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट चीज आपको प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग है। सेकंड चीज आपको कस्टमर का पता हो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तीसरा काम आपने ये करना है कि आप जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट और आपके पास प्रोडक्ट है उसको कनेक्ट कर दें, दैट्स ऑल। आप अगर अपने पसंद की चीज किसी को देंगे वो कंज्यूमर आपका रिपीटेड नहीं होगा। अगर आप उसके पसंद की उसको चीज देंगे तो आप एक रिपीटेड कस्टमर बना रहे हैं। ठीक है, हाउ टू बिल्ड वॉस नेटवर्क विद मोर एफर्ट्स। मैम नूरीन, प्रोस्पेक्टिंग मैंने आपको भी बताया कि 3 लोग प्रोस्पेक्ट करें, आप डेली बेसिस पे करें, आप 3 लोग आंखें बंद करके अपना ये काम करें, ट्रेनिंग अटेंड करें, नॉलेज लें जितना दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली जो उनसे आपका वॉस नेटवर्क हो जाएगा जी। लास्ट क्वेश्चन जी हमारे पास है जी, एक सेकेंड, नहीं आप देखें, ये जस्ट फॉर न्यू पीपल आपका ये कंसर्न कि आपको अगर ओरिफ्लेम में आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको निकाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर हैं, आपने काम करना है, आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं मुझे बहुत इनकम चाहिए, आपकी मर्जी। आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं करना, ये भी आपकी मर्जी है। इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल जो कि अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। तो इट्स ओके अगर डाउन मंथ आता है, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई आपको अल्लाह माफ करे को फाइन नहीं हो जाता इस चीज के ऊपर। तो स्टे कॉन्फिडेंट, वी आर टुगेदर और इंशाल्लाह ताला इकट्ठे ग्रो करेंगे जी। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर लिसनिंग टू अस। 1.25 घंटा हो गया जी हमें वो बात करते हुए, मुझे और असलम साहब को, मैंने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू वेरी मच जी वंस अगेन। इंशाल्लाह ताला विल कीप ब्रिंगिंग मोर ट्रेनिंग्स फॉर यू, और आपसे मुलाकात करेंगे जी इंशाल्लाह। हैव अ वंडरफुल मंथ अहेड, और मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। ईद की बहुत सारी छुट्टियां थी, वो आपके अपने बिजनेस में भी गैप होगा, लेट्स जस्ट ट्राई टू फिल दैट अप, और उसको हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। आप लोगों की एफर्ट्स चाहिए होंगे, लेट्स जस्ट डू दैट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।